justify the need for FDI for the development of the Indian economy? Why is there a gap between MOU signed and the actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India. FDI has become an important source of private external finance for developing countries. It is different from other major types of external private capital flows. ये डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर मेजर टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल प्राइवेट कैपिटल फ्लोज in that it is motivated largely by the investors' long-term prospects. Motivated by the largely by the investors' long-term prospects for making profits in production activities that they directly control. Foreign bank lending and portfolio investment, in contrast, are often motivated by short-term profit considerations that can be influenced by a variety of factors, interest rate, for example, and are prone to herd behavior. While FDI represents investment in production facilities, its significance for developing countries is much greater. Not only can FDI add to investable sources and capital formation, but perhaps more important, it is also a means of transferring production technology. But perhaps more important, it is also a means of transferring production technology, skills, innovative capacity, innovative capacity, and organizational and managerial practices between locations, as well as of accessing international marketing networks. The greater the supply of and distribution links between foreign affiliates and domestic firms, and the stronger the capabilities of domestic firms to capture spillovers. The greater the supply and distribution links between foreign affiliates and domestic firms, and the stronger the capabilities of domestic firms to capture spillovers, that is, indirect effects from the presence of and competition from foreign firms, the more likely it is that attributes of FDI that enhance productivity and competitiveness will spread. The greater the supply and distribution links between the foreign affiliates and domestic firms, and the stronger the capabilities of domestic firms to capture spillovers from the presence of and competition from foreign firms, the more likely it is that the attributes of FDI that enhance productivity and competitiveness will spread. क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अभी. FDI contributes not only to resource capacity of a country but also to technical and financial capacity of the country. Not only to resource capacity of a country but also to technical and financial capacity of the country. India have been one of the largest recipient of FDI in the world because of the potential of the economy, which allows better profit opportunity and for development of ठीक है ना क्या. इंडिया FDI contributes not only to the resource capacity of a country but also to technical and financial capacity of the country. India have been one of the largest recipient of FDI in the world because of the potential of the economy, which allows better profit opportunity. तो इसकी रेलिवेंसी क्या थी उस साल में कि 5 साल लगातार 5 साल से FDI ज़्यादा आ रही थी, बट उसका हार्डली 40 to 50% ही MOU के तौर पर साइन हो पा रहा था. ऑफ द MOU साइंड में से केवल 40 to 50% ही हमारे यहाँ पे FDI आ पा रही थी. नीड फॉर FDI फॉर डेवलपमेंट पार्ट 1 है ये. कैसे करके मैनेजिंग नेगेटिव सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप. सबसे पहला जो रोल FDI का वो क्या करता है कि जो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है. मैनेजिंग नेगेटिव सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, दैट इज़ a current account deficit of 60 needs to be financed. FDI, even FBI, is nothing but foreign savings coming to my country. तो मैनेजिंग नेगेटिव सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप क्या होता है, विच हेल्प इन क्रिएटिंग मोर रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ ऑफ द कंट्री. क्रिएटिंग मोर रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को मैनेज करने में हेल्प करता है ये. मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल गैप विद डेवलप्ड कंट्रीज. Managing technological gap with developed countries
These technological gap in developed countries can be managed in two way. जो टेक्नोलॉजिकल जो गैप है उसको हेल्प मेंटेन करने में क्या कहता है, मैनेज करने में हेल्प करता है. मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल गैप विद डेवलपिंग कंट्रीज. दीज टेक्नोलॉजिकल गैप इन डेवलप्ड कंट्रीज कैन बी मैनेज इन टू वे. FDI ब्रिंग्स इट्स ओन टेक्नोलॉजी. पहले काम करता है कि FDI ब्रिंग्स इट्स ओन टेक्नोलॉजी, और दूसरा करता है द मनी दैट FDI ब्रिंग into the economy can be used to create new technologies, that is R&D investment. टू वेज कैसे, डायरेक्ट इनपुट ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू FDI, और दूसरा हो गया फाइनेंसिंग R&D, और तीसरा है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन. लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मीन्स फॉरेनर्स कम इनटू योर कंट्री, ब्रिंग न्यू टेक्निक. ये लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन. Global others in the country see that and learn how to use that technique. Global competition and enhanced productivity. Global competition and enhanced productivity. Economy over effects भी दिखते हैं, spill over effects भी होते हैं. इन जैसे कि एग्जांपल है इसका पोटैटो चिप्स वाला जो था, इन 1992 में द इंडिया डिड नॉट हैव द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिससे कि पैकेजिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी. A system of airtight packaging using aluminum foil is started changing from 92-93 when companies started entering into India. फिर दूसरा हमारा इसका एग्जांपल है डेवलप सप्लाई चेन कनेक्टिविटी. ये सप्लाई चेन कनेक्टिविटी को डेवलप करने में हेल्प करती है. जब FDI आती है तो सप्लाई चेन कनेक्टिविटी को डेवलप करने में हेल्प करती है. जैसे कि एग्जांपल है रिसेंटली एप्पल्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलेगी एप्पल की. वो उसी का एग्जांपल है कि ये जो FDI है हेल्प्स इन डेवलपिंग सप्लाई चेन कनेक्टिविटी. मोर FDI इन इंडिया विल मीन मोर फर्म प्रोड्यूसिंग फ्रॉम इंडिया एंड दे कैन हैव देयर सप्लाई चेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड ग्रेजुअली इंडिया कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब एंड ग्लोबल सप्लाई चेन हब, गिविंग इंडिया मच लार्जर एक्सेसिबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन मार्केट्स. मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं. एक्चुअली मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी. क्यों? जब यहाँ पे आके कंट्रीज़ जो हैं, अदर कंपनीज़ यहाँ पे आके खोलेंगी तो वो गेट्स कनेक्टेड टू द ग्लोबल सप्लाई चेन का एक और लिंक बन जाता है उसके बीच में, और उसके साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन का लिंक बन जाएगा और ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बन जाएगा. दूसरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बन जाएगा. मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी. इनफ्लो ऑफ FDI मेक्स पॉसिबल एन इनफ्लो ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉमोडिटीज़ प्रोड्यूस्ड एट होम. जब इनफ्लो ऑफ FDI बढ़ता है, मेक्स पॉसिबल एन इनफ्लो ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़. मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं फॉर कॉमोडिटीज़ प्रोड्यूस्ड एट होम. इनफ्लो ऑफ FDI मेक्स पॉसिबल एन इनफ्लो ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉमोडिटीज़ प्रोड्यूस्ड एट होम. एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डन बाय द Hyundai in India or Toyota in India meant that Indian auto component manufacturer also became participant in it. And gradually Hyundai and Toyota realized that Indian labor and India auto component manufacturing is one of the cheapest in the world. So now they are exporting from India not only cars but also components manufactured by people in India to the other plants in the world, knowing very well that these are the cheapest that they can manage. So that ways FDI gets you not only investment but can also be a point to get future market. ये फ्यूचर मार्केट को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है. चौथा है क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट these employment opportunities are sometimes a lot for the skilled workforce. So in that sense brain drain parts get restricted. जब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेगी वो ज़्यादातर जो होती हैं वो स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए होती हैं, और जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ड्रेन पार्ट्स गेट रेस्ट्रिक्टेड एंड देन क्रिएट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट. और मल्टीप्लायर इफेक्ट को भी जनरेट करता है विच क्रिएट्स फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नॉट ओनली स्किल्ड वर्कर्स बट इवन फॉर द लेस स्किल्ड वर्कर्स. क्रिएट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट भी करता है विच क्रिएट्स फर्दर अपॉर्चुनिटीज़. मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है फॉर नॉट ओनली स्किल्ड वर्कर्स बट इवन फॉर द लेस स्किल्ड वंस. FDI ऑल्सो ट्रेन इन ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़. ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़ में भी ट्रेन करता है डोमेस्टिक कंपनीज़ को. FDI ऑल्सो ट्रेन इन लोकल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़ दैट हाउ डू यू प्रोड्यूस फॉर द ग्लोब. इन दैट केस
बिजनेस एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स इन दैट, जिसकी वजह से बिजनेस एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स बिकम्स पॉसिबल, दैट यू रियलाइज दैट हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल लिंक। तो जो ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज हैं, ऑल्सो ट्रेन इन द ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, एक्सपेंड होराइजन ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, जिसकी वजह से होराइजन ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स भी एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होराइजन ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स विच होराइजन सोर्सिंग बेटर रॉ मटेरियल, यूजिंग बेटर एफिशिएंट इनपुट्स लाइक कैपिटल मशीन्स, producing with more efficiency, because they are again not only producing for their own country but sometimes with FDI coming in exposure to global market opportunities can be seen abroad or can be used। पता नहीं क्या बोल रहा है। कुल मिला के बात ये कहना चाहता है इसमें कि है ना, ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज में भी डोमेस्टिक फर्म्स को ट्रेन करता है ताकि वो केवल अपने लिए ही नहीं ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज कैसे करें कि कहाँ से हमको रॉ मटेरियल सस्ते में मंगाना है, कि सोर्सिंग ऑफ बेटर रॉ मटेरियल, चीप सोर्स कहाँ से मिलेगी रॉ मटेरियल की, बेटर एफिशिएंट इनपुट्स कहाँ से आएंगे, कैपिटल मशीन्स कहाँ से आएंगी, मोर एफिशिएंटली हम कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये जो हमारी ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज है इसमें डोमेस्टिक फर्म्स को ट्रेन करता है, ये कहना चाह रहा है मरल्लू। और रीज़न फॉर लो कन्वर्जन क्यों है ऑफ MOUs इन एक्चुअल FDI। पहला है, सबसे पहला, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इज़ द मेन कॉज। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है वो उसका मेन कॉज है, दैट इज़ लैक ऑफ टाइमली क्लियरेंस फ्रॉम अथॉरिटीज़। टाइमली क्लियरेंस नहीं होता है फ्रॉम अथॉरिटीज़ एट स्टेट लेवल इन एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन टाइटल डीड्स की क्लैरिटी नहीं है, सो लैंड एक्विजिशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। लैक ऑफ पॉलिसी कंसिस्टेंसी, पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। लाइक चेंजेस इन द टैक्स लॉज चेंज कर दिए, चेंजेस इन गवर्नमेंट डिलेइंग प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं हमारे, पॉलिसी कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से। पुअर लॉजिस्टिक्स भी पुअर है। मैनी फर्म्स रियलाइज दैट इट इज़ अ हाई कॉस्ट इकोनॉमी, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहता है इकोनॉमी में। देन करप्शन एट लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी, करप्शन बहुत ज़्यादा है एट लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी पे, जिसकी वजह से क्या होता है, सेवरल कमोडिटीज़ विच आर रिजर्व्ड फॉर सर्टेन प्रोडक्शन लेवल, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को फॉलो करना, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सॉल्यूशन या रेमेडी क्या है इसकी, हैविंग सिंगल विंडो क्लियरेंस, हैविंग कंसिस्टेंस रूल मेकिंग बॉडीज़, स्पेशल क्लियरेंस फैसिलिटीज़ लाइक सिंगल विंडो एंड प्रॉपर टाइटल डीड्स होने चाहिए ऑन लैंड होल्डिंग्स। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये घर जाके देखेंगे अभी क्या है।